சில ஆண்டுகள் வந்து நமக்கு நம்ம விசேஷம் வச்சாங்கன்னா 100 ரூபா செஞ்சோம்னா ஒரு 5 ரூபா 10 ரூபா ஒரு 200 ரூபா சேர்த்து செய்வாங்க. ரசிக்க முடியாம நீங்க எந்திரிச்சு ஒத்துழை பண்ணீங்கன்னா அவங்க அந்த திட்டு சிரமம் வந்து கோயிலுக்கு வந்து திட்டு வாங்கணுமா, அதனால எல்லாரும் அமைதியாக இருந்தாங்க. அமர்ந்து உட்கார்ந்துருந்து இந்த திருக்கடாந்த வைபவத்தை சிறப்பாக நடத்தி கொடுக்க அன்போடு கேட்டுக் கொள்கிறோம். இன்னும் 10 மணிக்கெல்லாம் இந்த விழா நடந்துடும். இந்த வந்து சித்திரை திருவிழா 12ஆம் தேதி துவங்கி தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது. நேற்று நீங்கள் டிவியில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், பட்டாபிஷேக நிகழ்ச்சி எவ்வளோ அழகாக காமிச்சாங்க தெரியுமா? பட்டாபிஷேகம் அனைத்து வருஷம் மகளாக மீனாட்சி பிறக்கலாம், அனைத்து வருஷம் மகளாக மீனாட்சி பிறக்கிறாங்க. அவங்க வந்ததுக்கு 3 மார்பகங்கள் இருக்கிறது. 3 மார்பகங்கள் இருக்கிறத பார்த்து அனைத்து வருஷமான வருத்தப்படுறாரு. ஒரு பெண்ணுக்கு 3 மார்பகங்கள் இருக்கலாம் என்பதோடு வருத்தப்படுறாரு. வசதியாக அவனை திருமணம் செய்யக்கூடிய அவர் வந்தவுடனே அந்த 3வது அசிரியாக கூறுகிறது. இவருக்கு மீனாட்சிக்கு ஒரு பெரிய ஆட்சி
ஆட்சி மீனாட்சி அவர்களுக்கு வில்வித்தைகள் பலம் எல்லாமே கற்றுக் கொடுக்குறாங்க. அவர் வில்வித்தை போர் பயிற்சியெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்துறேன். அதை வந்து அதாவது 10வது நாள் திருக்கல்யாணம் நடக்கும், இன்னும் 8வது நாள் திருக்கல்யாணம் சிறப்பாக நடக்கும். இன்னைக்கு வந்து 2 ஒன்றா வரும். சில நட்சத்திரங்கள் மாறும்போது ஒரு 4 வருஷத்துக்கு பின்னால இந்த மாதிரி நிகழ்வுகள் நடக்கிறதாக அரசியல் சொன்னாங்க. நாளைக்கே நம்ம நடக்க வேண்டிய சூழ்நிலை. இந்த மாதிரி சிறப்பாக இந்த திருமணத்தை ஏற்று நடத்தக்கூடிய அன்பர்கள் பாரம்பரியமா அவங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க கட்டளையில. சேர்ந்து பிள்ளைகளை சிறப்பாக நடந்திருக்கிறார்கள். அவர்களையும் வருபவர்களையும் நிகழ்வு நடக்க தொடங்கி எல்லாரும் மதிப்பு கொடுக்கக்கூடிய அனுபவம் கொள்கிறோம். நடைபெற்று திருக்கல்யாணத்தை பார்த்து அம்மாவுக்கு வேண்டினா நிச்சயமாக அந்த திருக்கல்யாணம் நடக்கும். அதே மாதிரி மாற்றி வாங்கி மாற்றி கொடுத்தாலும் நல்லா நடக்கும். திருமணத்திலிருந்து நம்பிக்கை கல்யாணம் வரும். நந்திய பெருமானுக்கு திருக்கல்யாணம் ஆசி மாதம் சிறப்பாக நடக்கும். திருமணம் நடக்கும். அந்த திருமண வைபவத்தை பார்த்தவர்களுக்கு நந்தி கல்யாணம் பார்த்தால் முந்தி கல்யாணம் நடக்கும் பட முடியாது. அதனால அந்த மாதிரி நமக்கு எல்லா வகையும் நடக்கும். அந்த பிரசாதத்தை பெற்று महागणपते श्रीवल्ली देवसेना कांतस्मरणे वेदे सुब्रह्मण्यो सिद्धवेशा शिवसिदम्बरं शिवगामी जगदम्बिके जन्नारुடைய சிவனே போற்றியல் நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. ஓம் சிவனே வைத்தோம் சர்வகல்யாணமூர்த்திம் பாரசுகமலகஸ்தம் பூஷிதோ மோதகேன अर्णकुसुमालाभ्यर्णम्बूलरं तव मम हृदय निवासं श्रीगणेशं नमामि. अंको हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ते भृङ्गाङ्गुराभरणन्तमालम् अङ्गीकृताखिल विभूषितमाङ्गलीला माङ्गल्यदास्मङ्गलदेवदाय अस्माकमासामोगैरमोगैरगादिभिः सदञ्चैव सुखी भव धनं धान्यं वसु भगवत्र नाम सदा संवत्सरं दीर्घायुः. ओम शुक्लां वरदरविष्णुं दधिवर्णं सुदुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये
ओम 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 नमो भक्तमस्ते दक्षयद्वारा श्री परमेश्वराज्ञा परमेश्वर प्रसाद सिद्ध्यर्थम श्रीमते स्वगामिंबिका परमेश्वर समेत राजसिंहेश्वर पूलानंदीश्वर स्वामिनः प्रसाद सिद्ध्यर्थ महागणपति प्रसाद सिद्ध्यर्थ वल्ली देवसेना समेत श्री सुब्रह्मण्य स्वामिनः प्रसाद सिद्ध्यर्थम लक्ष्मी नारायण प्रसाद सिद्ध्यर्थम महाविडारी अंबिका परमेश्वरी प्रसाद विलंबया स्वामिनः प्रसाद सिद्ध्यर्थ इष्ट देवता कुलदेवता प्रसाद सर्वा विघ्नता सिद्ध्यर्थमत्यपूर्वोक्त एवं गुण सकल ग्रह गुण विशेषेण विशिष्टायमस्यावर्धमानाय अस्यां शुभदिनस्य देवस्य महादेवस्य गिराण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्रीमते स्वगामिंबिका समेत राजसिंहेश्वर स्वामिनः आलयस्य विशेष श्री कल्याण उत्सव आरंभ समये उभयकर्तॄणां यजमानस्य आय निर्वाहिना यजमानस्य निर्वाहिना सिन्नमण्णूर नगर भक्त महाजनानां ग्रामे महाजनानां आयुर् सकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य व्यायारोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थमरोग खडगात्रिगासिद्ध्यर्थमाचन्द्रार्क वंशाभिवृद्ध्यर्थमट्टलक्ष्मी कृपाकटाक्ष निवास परिपूर्णता सिद्ध्यर्थमादित्यादि नवग्रह दोष निवारण प्रसाद सिद्ध्यर्थम सकल कार्य जय प्राप्त्यर्थम व्यापार व्यवसाय उद्योग தொழில் வாரி கோடி கோடி லாப सिद्ध्यर्थम दीर्घ आयुष्य सिद्ध्यर्थम श्री कल्याणोत्सव आरंभ समये यजमानुगेन आचार्य वर्णमध्य वरिष्ठे विनायकं भजे महागणपते वल्ली देवसेना स्कंदस्मरणं जय जय सुब्रह्मण्यं शीघ्रवेट नमः शिवाय के कपटरे पोற்றி கைலை மலையானே போற்றி போற்றி பெருமை சார்ந்த பக்தமணி நண்பர்களே நமது சிவகாமி உடனுரை புராணந்தீஸ்வர சுவாமி ஆலயத்திலே விவாக திருக்கல்யாண உற்சவமானது தற்பொழுது மகாகணபதி வழிபாடு ஆரம்பிக்கப்பட உள்ளது. அது சமயம் அனைத்து மென்பர்களும் அமைதி காத்திருந்து உற்சவத்தை கண்டுகளிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. முதலாவதாக விநாயகர் வழிபாடு. ஓம் ஆச்சாரியம் ஆச்சம்யம் பவித்ரம் திருத்வா
शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये प्राणायाम्य अमृतं ब्रह्मा भूर्भुवस्वरो मम वाग्दा समस्त दुर्दक्षेद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं शिवाभ्यं नमः। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव गौरीपदे अन्दुरुकं स्मरामध्यकरिष्यमाणस्य कर्मणः निर्विघ्नेन प्रथमाप्त्यर्थम् आदौ महागणपति पूजां करिष्ये। अक्षतानुतरतो नरस्य अपौपस्पृश्य सकलीकृत्य सामान्यार्घ्यं संकल्प्य गणपतिं संस्थाप्य प्रमुञ्चधन्वनस्तमुभयोरार्तियोर्ज्य याश्तनोपराता भगवोऽवः अर्घ्यजलेन गणपतिमस्तेन सम्प्रोक्ष्य कवचेनावकुण्ड्य आधारशक्तेन नमः अनन्ताय नमः धर्माय नमः ज्ञानाय नमः वैराग्याय नमः ऐश्वर्याय नमः पद्माय नमः पद्मस्योपरि ओं गं गणपत्यासनाय नमः ओं गं गणपतिमूर्तये नमः कनस्थकदलीचूत वनसेक्षुकवित्तकं बालसूर्यप्रभाकारं वन्दे बालगणाधिपम् ओं ग्रां ग्रौं गं गणपते नमः मूलेनावाक्य आवाहन स्थापन सन्निधान सन्निरोधन दिग्बन्धनवकुण्डन धेनोदारत्रय पाशाङ्कुशमुद्रां प्रदर्श्य पाद्याचमनार्घ्यं दत्वा समस्तोपचारैः सम्पूज्य अर्घ्यं दत्वा गन्धापुष्प अक्षतानि समर्प्य हरिद्रा कुङ्कुमं समर्पयामि पुष्पमल्लिकां समर्पयामि पुष्पैः सम्पूजयामि। ओं गां सुमुखाय नमः ओं गां मेघनन्दाय नमः ओं गां कपिलाय नमः ओं गां गजकर्णकाय नमः ओं गां लम्बोदराय नमः ओं गां विकटाय नमः ओं गां विघ्नराजाय नमः ओं गां विनायकाय नमः ओं गां धूमकेतवे नमः ओं गां गणाध्यक्षाय नमः ओं गां बालचन्द्राय नमः ओं गां गजाननाय नमः ओं गां वक्रतुण्डाय नमः ओं गां शूर्पकर्णकाय नमः ओं गां हेरम्बाय नमः ओं गां स्कन्दपूरजाय नमः सर्वसिद्धिवल्लभ महागणपतये नमो नमः। नानाविधपरिमळ पत्रपुष्पार्चनं समर्पयामि महागणपतये नमः धूपमाग्रापयामि। ओं दशदलविनवारुद्धं सुगन्धं सुमनोहरम् आग्नेयं सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपमाग्रापयामि दिवार्तमक्षता समर्पयामि दुर्भुवस्वः अमृतोद्भवं निवेदयामि आचमनीयं समर्पयामि। ओं आदिपूज्याय देवाय नन्दमोदकदारिणे वल्लभाप्राणकान्ताय श्रीगणेशाय मङ्गलं महागणपते नमः। कर्पूरज्योतिः एवं वेद योगामायुधनं वेद आयनवान् भवति वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि मूलमन्त्रं यावच्छक्तिं जप्त्वा समर्प्य प्रार्थ्य निगन्धकान्तिगन्धकान्तमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय निरन्तरं कृतन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकलं तमेवदं विचिन्तयामि सन्ततम्। महागणेश पञ्चरत्नमादलेन योमहं प्रकल्परे प्रभालके गगस्मरं गणेश्वरम् अरोगदामदोडदां सुसागिरिं सुपुत्रदां समाहितायुरट्टभूतिमभ्युपैति शोचिराते। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शिवा त्रिशतं वदम् अङ्गं वेदम् ओधुनावान् अन्तर्नाळुम् अटिपरवान् मङ्गुळ्मदीतवान् मानवीरीं மருகனிலாவியம் அமைந்தம் சொல்லாய் செங்கையலார் புனல் செல்வமல்கு சிறுகள் செங்காட்டம் குடியதனுள் கங்குள் விலங்கரி ஏந்தியாடும் கணபதி சரம் காமுரவே. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। महागणपतये नमः। प्रार्थनानि समर्पयामि। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। प्राणायाम्य अमृतं ब्रह्मा भूर्भुवस्वरो ममो भाग्य समस्त दुर्दक्षेद्वारा
श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम शिवाभ्यां नमः। शिव शिव शंभोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयवरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शिवाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवादि षष्टिसंवत्सराणां मध्ये इदानीं मङ्गलकर क्रोधिनामसंवत्सरे उत्तरायणे वसन्तऋतौ मेषमासे शुक्लपक्षे मङ्गल एकादश्याम् उपरि द्वादश्यां शुभऋतौ स्थिरवासर संयुक्तायां शुभनक्षत्र पूर्वफल्गुनी नक्षत्र संयुक्तायां शुभयोग शुभकरण एवं विशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायाम् अस्यां शुभऋतौ अस्या देवदेवस्य महादेवस्य अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य अकार उकार मकार ओंकार प्रणवाकार स्वरूपस्य महागणपतेः प्रसादात् कार्तिकरः कार्तिकेयः परब्रह्मण्य वल्ली देवसेनाम्बा समेत शिव षण्मुख सुब्रह्मण्य स्वामिनः प्रसादात् सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्व सर्वान्तर्यामित्व सर्वसृष्टत्व सर्वभोक्तृत्व सर्वसंहारकत्व सर्वपालकत्व सर्वव्यापकत्व सर्वशक्ति मध्वारि गुण गण विभूषितस्य वेदान्तवेद्यस्य कामिकादि अष्टाविंशत्यागमैः प्रतिपाद्यमान निखिल निगमसार रहस्याविधानस्य अस्मिन् क्षेत्रे निवासभूतस्य श्रीमते शिवगाम्यम्बा समेताय राजसिंहेश्वर स्वामिनः विशेषतः चैत्र महोत्सव वैभव कर्मणि अस्मिन् अष्टमदिनस्य प्रातःकाल समये तु स्वामिनः प्रीतिकरं च लोकक्षेमार्थ वैभवस्य विशेषतः विवाह महोत्सव वैभव कर्मणि अस्मिन् चिन्नमनूर् इति नामालङ्कृत ग्रामनिवासीनाम् अस्मिन् नगरनिवासीनाम् उपग्रामनिवासीनां समस्त आस्तिक भक्तमहाजनानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय शौर्य आयुरारोग्य ऐश्वर्यायुष्य सत्सन्तान सौभाग्य धर्मार्थकाम्य मोक्ष चतुर्विद्याफल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं समस्त मंगलावाद्यर्थं प्रसादफल सिद्ध्यर्थं धन गणक वस्तु वाहनादि अष्ट ऐश्वर्यदा सिद्ध्यर्थं आचन्द्रार्घ वंशाणाम् अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं चंद्रवदे धनाभिवृद्ध्यर्थं सूर्यवदे तेजोवृद्ध्यर्थं नित्य कल्याण परंपरावाद सिद्ध्यर्थं सदाकालं संतोषकर प्राप्त सिद्ध्यर्थं अस्मिन् ग्रामे समस्त सुवृष्टि प्राप्ति सिद्ध्यर्थं समस्त अरोग दृढगात्रदा सिद्ध्यर्थं विशेषतः शिवगाम्यम्बा समेत राजसिंहे नमः कुम्भाग्रे रुद्राय नमः ओष्ठे स्कन्दाय नमः ग्राणे विघ्नेशाय नमः पुक्षोवर्णाय नमः पादयोः भास्कराय नमः पार्श्वयो नन्दिने नमः महाकालाय नमः गंगाय नमः यमुनाय नमः गोदावरी नमः सरस्वती नमः नर्मदाय नमः सिन्धवे नमः कावेरी नमः ताम्रभरणी नमः अनन्ताय नमः धर्माय नमः ज्ञानाय नमः वैराग्याय नमः ऐश्वर्याय नमः पद्माय नमः पद्मस्योपरि ओम वरुणासनाय नमः ओम वरुणमूर्तये नमः नागवासदं रट्टं रत्नोकर्णविग्रहं कुशाङ्गलवलं ध्यायेत् वरुणं मकरासनं वरुणविद्यालयनेत्राभ्यां नमः भगाय विद्महे बालहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुणाय नमः वाद्य अवागणे तापणे सन्निधाने संयोजने दिक्पत्र कालत्रय धेनुमुद्रा मकरमुद्रा प्रदर्श्य पाद्याचमनार्घ्या दत्त्वा समस्तोपचारैः सम्पूज्य धूपदीप नैवेद्यादिकं विधाय ओम दशद्रव्यनिर्माणयुक्तं सुगन्धं सुमनोहरम् आग्नेयं सर्वदेवानां धूपोऽयं पौरिक्यतां धूपमाग्रापयामि पूर्ववस्व अमलोद्भवं निवेदयामि आचमनीयं समर्पयामि कर्पूरज्योतिः पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् कर्पूरनीराजन ज्योतिः एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि मूलमन्त्रं यावत् शक्तिं जप्त्वा
समर्प्य प्रार्थ्य गंगा सिंधु सरस्वती गोदावरी नर्मदा कावेरी कपिला प्रयाग सरयू वेद्रावती इत्यादयाः नद्यः कुर्वन्तु वा मङ्गलम् नमो मकरवाहाय भाडवस्वाय नमः प्रचेतसे नमस्तुभ्यं वरुणाय नमो नमः वरुणाय नमः प्रार्थना पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि अस्मिन् स्तोत्रजपकर्मणि सर्वेभ्यो शिवद्विजेभ्यो नमः ओम शिवाय महादेवाय भाविने नैवेद्यं हराय नमः परमेशाय सिद्धाय सर्वसिद्धिप्रदायिने त्र्यम्बकाय अधिशान्ताय ते नमः ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यादियोगिनः कामदं मोक्षदं जीव ओंकाराय नमो नमः नमन्दिरयो देवः नरानमन्देवेन नगाराय नमो नमः महादेव महात्मान महाध्यानबलाय महाभावगरं देव मगाराय नमो नमः शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारणं शिवमेकपदं नित्यं शिकाराय नमो नमः वाहनं ऋणभो यस्य वासुकी घण्टपूर्णं कामयशक्तिधरं देव मगाराय नमो नमः यत्र यत्र स्तो देवः सर्वव्यापी महेश्वरः योगिनः सर्वदेवानां विकाराय नमो नमः गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धुकावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थे क्षेमाय पुनरागमनाय च अमीवः वास्तवात्मने विश्वारूपाण्यावरण्ये सकाशेव यदिनः शुभम् अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थां ततोऽपि वा यस्मरे साममीशानं सभाग्याभ्यन्तरश्री भूर्भुवस्सुः भूर्भुवस्सुः भूर्भुवस्सुवाः अर्घ्यतेन कुम्भमस्त्रेण सम्प्रोक्ष्य कवचेन अवगुण्य ओम अधकूर्मशरासीनां क्षीरोचितविग्रह मनोबीजां दुराकारां मरदां भयप्रदां भाषान्तरां ओम ह्रीं माताशक्ते नमः अनन्तासनाय नमः सिंहासनाय नमः योगासनाय नमः पद्मासनाय नमः विमलासनाय नमः विमलासनमध्ये शिवासनाय नमः शिवमूर्ते नमः शिवाय नमः गौर्यासनाय नमः गौरीमूर्ते नमः गौरी नमः व्यासालयं विधाय ओम ओम ईशानमूर्ताय नमः उमाय नमः मूर्धनि उत्तरोग्राय नमः गौरी नमः अत्रे हृदयाय नमः गंगाय नमः हृदये वामदेव्याय नमः अंबिकाय नमः नाभे सद्योजातमूर्ते नमः घनाम्बिकाय नमः गणाय नमः मूर्धनि शान्तिकराय नमः अत्रे विद्याकराय नमः हृदये प्रतिष्ठाकराय नमः नाभो निवर्तिकराय नमः पादयोः सर्वाङ्गेषु ध्यानं कुर्यात् धवलाभसुखासनसन्निहितम् हरिणीमृगडङ्गवराभयदं सुमुखं फलमुत्पलदृग्वरदं उमया सह देवस्वरूपमिदं शिवाय नमः अवाह्य अवाहने स्थापने सन्निधाने सन्निरोधने दिग्बन्धनावकुण्ठने तालत्रय तेनो पंचमुखी मुद्रा योनिमुद्रां प्रदर्श्य त्याजमलार्घ्यान् विद्वा समत्कृतं पूज्य पिडशक्त्यासनाय नमः पिडशक्तिमूर्ते नमः पिडशक्ति नमः प्रथमावरणे ओम विशालमूर्ताय नमः उमाय नमः पुत्रोग्राय नमः गौरी नमः गौरहृदयाय नमः अलेप्याय नमः अंबिकाय नमः दियोजातमूर्ते नमः घनाम्बिकाय नमः हृदयाय नमः वामिनी नमः शरसे नमः निरन्ये नमः शिखरण्ये कवचाय नमः भावाङ्गी नमः नेत्रेभ्यो नमः खड्गिनी नमः अस्त्राय नमः काम्यन्ये नमः प्रथमावरणेभ्यो स्वाहा अर्घ्यं दत्त्वा द्वितीयावरणेभ्यो नमः तृतीयावरणेभ्यो नमः चतुर्थावरणेभ्यो नमः चतुर्थावरणेभ्यो नमः पंचमावरणेभ्यो नमः आवाह्य आवाहनादि धेनुमुद्रां प्रदर्श्य अर्घ्यं दत्त्वा संप्रोक्ष्य अजेनावम्य अदारहते नमः अनन्ताय नमः धर्माय नमः ज्ञानाय नमः वैराग्याय नमः ऐश्वर्याय नमः पद्माय नमः पद्मस्योपरि ओम ह्रीं गौर्यासनाय नमः ओम ह्रीं गौरीमूर्ते नमः ओम ह्रीं गौरी नमः श्यामां त्रिनेत्रां त्रिभुजां त्रिभङ्गीं सव्यापसव्यस्थितकुञ्जिताङ्घ्रिं सव्योत्पलं वा घटकान्वितं वा
हस्ते वलम्बां परमेश्वरीं तां ॐ ह्रीं गौरी नमः आवाह्य आवाहनधेनुमुद्रां प्रदर्श्य अर्घ्यं दत्त्वा धूपदीप निवेद्यालयं विधाय ॐ दूरसदोर्वयोर्वन्दोर्वयोस्मान् दूरदिदं दूर्वयं वयं दूर्वामहाधूमाग्रापयामि ऊर्ध्वस्वः अमृतोपकारं निवेदयामि निवेद्यानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि ओम सर्वस्याते सर्वसिद्धि सर्वमेव देहाप्नोति सर्वं जयति कर्पूरज्योतिः नाम हरणीं सुवर्णकृतस्रजां चन्द्रां हरणीं लग्नीं जातो लग्नीं मनवगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गावश्वपुरा प्रबोधिनीं श्रीमादेवोदा हिरण्य प्राकार श्रियं चन्द्रां प्रभासामिडदागणं विदश्यं लोके लक्ष्मीर्विनशकान्त्वावृणीम् आदित्यवसा रायाच भाग्या लक्ष्मीं धुमादेव सखा केतु शमयाना प्रादुर्भूतोस्मिरादेशं कीर्तिमृत्युदादरे कृत्तिवासामलाक्ष्मीर्नाम्यम् अभिनवमेग्रहाद गन्धद्वारात्मभूतानां श्रियं मनसक्कां माधुर्यं च सत्यमभीमहि प्रजा भूतानि सम्पदमता मे गुणे मातरं पद्ममालिनी आटसृजान्धस्निग्धानि चिक्लीदवसमेघ्ये जलेश्रियं वासे मे गुणे आर्द्रामुष्करणीं गोपीं स्वर्णां हेममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयो लक्ष्मीं जावेयो माला लक्ष्मी प्रचोदयात् देवी नमस्ते देवी शिवाजी प्रचोदयात् शिवहाबिम्बासमेत राजसिंहेश्वरवर्णिवाय प्रार्थना पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ஓம் ஹர நம பார்வதி பதயே மகாதேவ அன்பார்ந்த பக்த பெருமக்களே எல்லாம் நமது சின்னமனூர் இருக்கக்கூடிய எல்லாமல்ல சிவகாமி அம்மன் உடனாகிய பூலானந்தீஸ்வர பெருமானுடைய ஆலயத்தில் வருடந்தோறும் நடைபெறக்கூடிய சித்திரை பெருந்திருவிழாவினுடைய முக்கிய அங்கமாக நடைபெறக்கூடிய திருக்கல்யாண உற்சவமானது இன்று நமது ஆலயத்தில் எப்பொழுதும் கொடியேற்றியிலிருந்து 8ஆம் நாள் நடைபெறக்கூடிய திருவிழா இந்த திருக்கல்யாண திருவிழா. நமது ஆலயத்தில் மிருகசீரிச நட்சத்திரத்தில் சித்திரை மாதத்தில் வரக்கூடிய மிருகசீரிச நட்சத்திரத்தில் கொடியேற்றப்படும். அது ஒரு சமயம் பங்குனியிலே வரும், ஒரு சமயம் சித்திரை நடுவுலையும் வரும். சித்திரை 15, 16 இந்த மாதிரி 16, 20 தேதிக்குள்ள வரும். சில நேரங்களில் பங்குனி 20 இல்லை 25 தேதிக்குள் அந்த மிருகசீரிச நட்சத்திரமானது வந்துவிடும். மதுரையும் இது ஒன்றாக நடைபெறும் அப்படிம்பாங்க, அதெல்லாம் இல்லை. மதுரைக்கும் இதற்கும் 2 நாட்கள் வித்தியாசம் நடைபெறும். அங்கே ரோகிணி நட்சத்திரத்தில் கொடியேற்றப்படும், இங்கே மிருகசீரிச நட்சத்திரத்தில் கொடியேறப்படும். அங்கே கொடியேறதுக்கு அப்புறம் தான் அங்கே கொடியேறும். சில நேரங்களில் ஒரே நாளில் இந்த கொடியேற்ற நிகழ்ச்சி நடைபெறும். இல்லை ஒரு நாள் 2 நாள் முன்னப்புறம் நடைபெறக்கூடிய நேரங்களில் நமது ஆலயத்திலையும் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் ஆலயத்தில் ஒரே நேரத்தில் திருக்கல்யாணம். சில நேரங்களில் 5 வருடங்களுக்கு ஒரு முறையோ இந்த மாதிரி நேரங்கள்லாம் நடைபெறும். முக்கால்வாசி தேர் திருவிழா அன்னைக்கு தான் அங்கே திருக்கல்யாணமானது நடைபெறும். நம்மளுடைய தேர் திருவிழா தான்
அங்கே திருக்கல்யாணமானது நடைபெறும். நமது ஆலயத்தில் இந்த வருடம் பங்குனி கடைசி 31ஆம் தேதியே பங்குனி 31 கொடியேறி இருக்க வேண்டியது. உபவாச ஆராதனாக நம்ம கொடி ஏற்றவில்லை. கண்டிப்பாக 2025 கொடி ஏற்றப்படும். அதற்குள் மகா கும்பாபிஷேகமானது ஆலயத்தின் நிர்வாகத்தின் சார்பாக சிறப்பாக நடைபெறும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த வருடம் இன்றைக்கு தான் இந்த திருக்கல்யாண நிகழ்ச்சியாக நடைபெறுகிறது. பெருமாகோயிலையும் சனிக்கிழமை தான் நடைபெற்றது. நமக்கும் இன்றைக்கு சனிக்கிழமை தான் இந்த திருக்கல்யாணமானது சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கிற நிர்வாகத்தினுடைய சிறப்பான ஏற்பாட்டில் இந்த பொதுமக்களுடைய பெரும் உதவியோடு இந்த திருக்கல்யாணமானது சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த திருக்கல்யாணத்தில் முதலில் எல்லாமல்ல விநாயகர் பெருமானுடைய வழிபாடு, அதைத் தொடர்ந்து சுத்தநீர் தெளித்தல் என்று சொல்லக்கூடிய புண்ணியாவாத நிகழ்ச்சி நடைபெற்று இப்பொழுது கும்பங்களில் எல்லாம் உள்ள சிவகாமி பெருமானை கும்ப பூஜை செய்து அதனைத் தொடர்ந்து யாக வேள்வி, திருமாங்கல்ய பூஜை, அதனைத் தொடர்ந்து திருமங்கல்ய தாரணமானது எல்லாம் 12 மணிக்குள் சிறப்பாக நடைபெற இருக்கிறது என்பதை தெரிவிக்கும். இந்த திருக்கல்யாணத்தை கண்டு தரிசித்து எல்லாம் உள்ள சிவகாமி அம்மனாகிய பெருமானுடைய அருளுக்கு பாத்திரமாகும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். அது மட்டுமல்ல, இந்த திருக்கல்யாணத்தை தரிசனம் செய்யக்கூடிய பக்தர்கள் எல்லோரும் வேண்டக்கூடிய வரங்களை எல்லாம் உள்ள சிவகாமி அம்மனை நோக்கி வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். முக்கியமாக மழையானது வர வேண்டும் என்று சொல்லி வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். விவசாயம் செழிக்க வேண்டும், மழையானது வர வேண்டும், குழந்தைகளுக்கு படிப்பு, அதனைத் தொடர்ந்து உத்தியோகம் என்று சொல்லக்கூடிய வேலை வாய்ப்பு, அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெறக்கூடிய கல்யாணத்தையும் குழந்தைகளுக்கு அந்த நேரங்களில் நடக்கக்கூடிய விசேஷங்கள்லாம் நடைபெற வேண்டும். சின்னமன்னூர் இன்னும் செழிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வேண்டிக் கொண்டு இந்த திருக்கல்யாணத்தை தரிசித்து இதுபடி எல்லாருக்குமே மாங்கல்ய கயிறு இருக்குது. யாரும் முன்னாடி முட்டி வர வேண்டாம், எல்லாரும் வெளியே வர வேண்டாம். கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி நிறைய மாங்கல்ய கயிறு கொடுத்தாங்க. இன்னமும் வெளியில் 1500 கயிறு வச்சிருக்கிறாங்க வெளியில் கொடுக்கறதுக்கு. மேலேயும் நாங்கள் மாங்கல்ய கயிறு வச்சிருக்கிறோம், மஞ்சள் தேங்காய் வச்சிருக்கிறோம். அதனால் நீங்கள் யாரும் முண்டி அடித்து வந்து வாங்கிக்க வேண்டாம். நீங்கள் வரிசையாக வந்து வாங்கிக் கொள்ளலாம். வெளியில் சக்கரை பொங்கல் விநியோகம் பண்ணுவாங்க. அந்த டயத்தில் இந்த மாங்கல்ய கயிறு அங்கேயும் வெளியில் கொடுக்க வச்சிருக்கிறாங்க. அதனால் யாரும் அவசரப்பட்டு திருமங்கல்ய தாரணம் ஆன உடனே தாலி கட்டின உடனே எல்லாரும் முன்னாடி ஓடி வர வேண்டாம். அதனைத் தொடர்ந்து பூஜைகள்லாம் சிறப்பாக நடக்க இருக்கு. அதனால் அமைதியாக உட்காந்து தரிசனம் பண்ணுங்க. தாலி கயிறு கட்டியாச்சு அப்படின்னு சொல்லி டக்குன்னு வெளியில் கிளம்பி போயிடாதீங்க. அதுக்கு தான் नमः गौर्या स्वाहा गौरी नमः गौरी नमः शिवाय स्वाहा शिवाय स्वाहा शिवाय स्वाहा गौरी स्वाहा देवाय नमः शुद्धाय नमः शिव प्रचोदयात् स्वाहा नमः शिव प्रचोदयात् स्वाहा ओम धन्यराय नमः शुद्धाय नमः शिव प्रचोदयात् स्वाहा ओम धन्यराय शिवा प्रचोदयात् स्वाहा शिवा प्रचोदयात् स्वाहा
லட்சுமி கல்யாண வைபோகமே சனங்கள் தெரித்து ஈஸ்வரனாகத்து ஆசைகள் தங்கவும் வைத்து உன்னோம் கல்லாடி இருந்தால் கண்ணோங்கள் ஆடி இருந்தால் உத்தரி பெற்ற குமாரே நித்ய சர்வ
கும்பாபிஷேகம் சிறப்பாக நடைபெறுகிறது. ஐயன் கோயில் வேலைக்கு வந்து வேலைக்கு கல்யாணம் ஆகாத பெண்கள் இல்லை கல்யாணம் ஆகக்கூடிய ஆகணும் வேண்டிக்கக்கூடிய ஆண்கள்லாம் வேலைக்கு வந்து பிரார்த்தனை செய்து நாங்கள் தரக்கூடிய இந்த மஞ்சள் தேங்காய் ஒரு திருமங்கலிய கயிறை பற்றி ஆசீர்வாதம் வாங்கிக் கொள்ளுமாறு எல்லோரையும் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது. திருமங்கலியதாரம் நடைபெறும் பொழுது தாங்கள் குறைகளை எல்லாம் நிவர்த்தி செய்ய வேண்டிக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. தங்களுடைய எண்ணங்கள் ஒருத்தருக்கு ஒவ்வொரு குறைகள் இருக்கலாம். வீடு கட்டணும், பெண்ணு கல்யாணம் ஆகணும், பையனுக்கு வேலை கிடைக்கணும், பசங்களுக்கு குழந்தைகள் நடைபெற வேண்டும் என்று சொல்லி வேண்டிக் கொள்ளுவார்கள். வேண்டிக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. அம்மாவை தரிசிக்கவே கேட்டுக்கிறோம். தயவு செய்து கோயில்களை வெளியிட்டிருக்காங்க. கூட்டம் கம்மியா இருக்க இந்த கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்று அதனைத் தொடர்ந்து சிவகாமியின் ஊருக்குள் வந்து தேர் திருவிழாவை சிறப்பாக நடைபெறணும். எல்லாரும் அதை பரிபூர்ணமாக வேண்டிக்கிட்டு சிறப்பாக நடத்தி தரணும். அமோகமாக நடக்கணும்.
மணிவலம் சிறக்க மன்னன் போன்முறை அரசு செய்க புலவினால் உயிர்கள் வாழ்க நான்முறை அறங்கள் ஓங்க நல்தவம் வெளிமல்க மேன்மைகள் செய்வ நீதி விளங்குக உலகமெல்லாம் கனவ பார்ப்பதே பதகே சிவனே போற்றே. எல்லாரும் வரிசையா இப்படி சுத்தி வந்து இப்படி வாங்கிக்கலாம். எல்லாரும் நமக்கு சுத்தி வந்து முன்னாடி வந்து வேண்டாம், சுத்தி வரலாம், சுத்தி வந்து வாங்கிக்கலாம்.